ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਗੈਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ Emerging India te apne remarks dete. Let me begin by thanking Dr. Nivedita Kundu and her team at Bharat Center of Canada for partnering with us for organizing Bharat Ko Jano, No India program as part of Consulate's ongoing celebration on 75 years of India's independence. This 5-day program brings together expert speakers to provide comprehensive information on wide range of subjects covering history, culture, philosophy, national security, education, science and technology, innovation, and will help in creating awareness about emerging India amongst the student fraternity of Canada. This coordinated initiative between the Consulate and Bharat Center of Canada will set the tone for shaping up of new horizons for enhancing the scope of engagement between India and Canada. I'm sure that the participating students will greatly benefit from the speakers' vast knowledge and in-depth understanding of the subjects. The program will also provide an exciting opportunity to the students to test their knowledge of India through a writing competition. I hope that all the students will enjoy every bit of this unique program. I look forward to your active participation in this initiative. ਤੇ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਦਾਸ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਮਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋ ਜਾਨੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ नो इंडिया प्रोग्राम? नो इंडिया प्रोग्राम जो कि भारत को जानो प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था भारत सेंटर ऑफ कनाडा, जो कि पॉलिसी थिंक टैंक है, और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम किया था। ये एक 5 दिन का प्रोग्राम हमने रखा था क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम हमने आयोजित किया है और ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। बेसिकली हम नया भारत के बारे में जानकारी देना चाहते थे और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को हमने रखा था, जैसे कि भारत के कल्चर, फिलॉसफी, हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्टेम टेक्नोलॉजी, स्टेम के बारे में बताया गया है, स्पेस साइंस के बारे में बताया गया है, इनोवेशंस के बारे में बताया गया है, और हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। सो ये डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को लेके हमने ये प्रोग्राम को आयोजित किया था और इस प्रोग्राम के द्वारा हम पार्टिसिपेंट्स को, स्टूडेंट्स को बताना चाहते थे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है भारत में और भारत और कनाडा के बीच में क्या क्या कोलैबोरेशंस हो रही है डिफरेंट सेक्टर्स में। सो ये जानकारी हम बेसिकली स्टूडेंट्स को और पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भारत और कनाडा के बारे में बहुत कुछ चल रही है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है, और इसके डिटेल्स में बताने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। और ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम हमने इंडिया एट 75 के जो सेलिब्रेशंस चल रही है उसके अंडर किया है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जो कि 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं
15 अगस्त 2021 को। सो ये जो सेलिब्रेशंस चल रही है ये 1-2 साल लगातार चलेगा और इसमें बहुत तरीके की प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और ये जो नो इंडिया प्रोग्राम है ये एक एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तरीके से हमने बनाया है और इसमें स्टूडेंट्स एज वेल एज एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज यंगर जनरेशन, also people who wants to invest in India, who wants to do trade and economic cooperation with India, who wants to do research with India, who wants to have educational activities in India, वो सारा वो कर सकते हैं और उसके बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम देते हैं और यही हम लोग चाह रहे हैं और ये प्रोग्राम को हम आगे भी लेके जाएंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? देखिए इस ऐसे टाइप के प्रोग्राम से तो एक तो आपको जानकारी मिलती है जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो सब बारे में आपको जानकारी मिलती है और बाकी हम लोगों को पता है कि इंडिया और कनाडा का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा चल रहा है और दोनों ही बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज है। लेकिन ऐसे टाइप के प्रोग्राम से कोलैबोरेशन और भी बढ़ता है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो भी काफ़ी बढ़ती है और वही हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो यंगर जनरेशन है जो मिलेनियल्स है उनको पता चले कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है दोनों देशों के अंदर और दोनों देशों के जो यंगर पॉपुलेशन मिलेनियल्स है एंटरप्रेन्योर्स है वो एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के साथ मिल के काम करे और जो कांटेक्ट है और जो कोलैबोरेशन है और जो रिलेशनशिप है वो और भी बेहतर बनाए और ये जानकारी को हम आगे लेके जाएंगे जैसे हमने बोला था। और हम लोग और भी एक चीज करते हैं इस प्रोग्राम के दौरान, हर दिन जो एक सब्जेक्ट के बाद हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं पार्टिसिपेंट्स को और उस क्वेश्चंस को हम बोलते हैं आंसर करने के लिए और डिटेल में 1000 वर्ड्स में लिखने के लिए कि आपने क्या जाना और आप क्या जानना चाहते हो और जो अच्छा राइटअप होता है हम उसको पब्लिश भी करते हैं और ऐसे जो इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम डिफरेंट प्राइजेस देते हैं, हम किताबें देते हैं स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को और ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको हम वॉलंटियर्स पॉइंट्स देते हैं। और भारत सरकार की तरफ से एक नो इंडिया दैट इज विजिट इंडिया प्रोग्राम का एक फेलोशिप है और उसमें भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम इस प्रोग्राम के दौरान उस फेलोशिप को अवेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं और उस दौरान वो भारत को विजिट भी कर सकते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स को और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता क्या क्या ग्रांट्स दोनों सरकार की तरफ से मिल रही है ऐसे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो हम वो सब जानकारी भी इस प्रोग्राम के थ्रू देने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे ग्रांट्स है और कौन सा वेबसाइट आप देख सकते हैं कौन से सेंटर से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आपको और भी जानकारी मिल सकती है। ये सब इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो कि रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर हम लोगों ने जो वो एक काइंड ऑफ कंपटीशन टाइप का जो क्वेश्चन रखा है तो उसके आधार में भी हमें समझ में आ जाता है कि उस पार्टिसिपेंट को कितना इंटरेस्ट है और क्या करना चाहते हैं। तो उसके आधार में हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम आगे
दे देते हैं और सरकार की तरफ से एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं और वो सारे क्राइटेरियाज अगर मीटअप करते हैं तो उस स्टूडेंट को इंडिया विजिट करने के लिए फेलोशिप दिया जाता है और वो काफ़ी लंबा फेलोशिप होता है, 1 महीने का, और कई जगह पे विजिट होता है और सारा सरकार की तरफ से ये खर्चा दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको भी हम चाहते हैं कि और भी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स आए और अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स को बताएं इस प्रोग्राम्स के बारे में और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ, जो हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे जो स्पीकर्स है, वो लोग सारे एब्सोल्युटली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पीकर है और लेक्चर दे रहे हैं तो उनकी जानकारी उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत गहराई से होती है। तो हमारे जैसे स्पेस साइंटिस्ट है, वो स्पेस साइंस के बारे में बोलते हैं। हमारे पास डिप्लोमेट्स है जो कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। हमारे पास और भी जो आईटी सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट है, वो लोग बताते हैं कि आईटी सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है, इनोवेशंस में क्या क्या हो रहा है। सो हमारे जो स्पीकर्स हैं वो बहुत ही नामी एकेडमिक्स, नामी डिप्लोमेट्स और प्रैक्टिशनर्स, सारे वैसे ही लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं जो कि गहराई से जानकारी देते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। और एक एक दिन हमारा जो प्रोग्राम है वो 2 घंटे का होता है, एक एक सब्जेक्ट 1-1 घंटा होता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी पार्टिसिपेंट्स पूछ सकते हैं और अपना जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और भी जो जानकारी उनको चाहिए होता है वो भी एक्सपर्ट्स को, बिकॉज दे हैव नॉलेज, तो वो भी सारा बहुत ही डिटेल में बताते हैं और काफ़ी क्लैरिटी उनको देते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਦਾਸ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ये फेलोशिप डिपेंड करता है क्योंकि ये दूसरे देशों से भी लोगों को दिया जाता है। तो कनाडा से अराउंड 25 लोगों को देते हैं, 25-30 लोगों को देते हैं और वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर देते हैं। और सिर्फ ये नो इंडिया फेलोशिप, जो विजिट फेलोशिप, ये एक फेलोशिप नहीं है, और भी बहुत सारे फेलोशिप है, जैसे इंडो कैनेडियन शास्त्री फाउंडेशन है, उसके बारे में भी हम बताते हैं कि उसमें भी क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर अगर रिसर्च करना चाहता है कोई, या तो कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना चाहता है तो वो क्या अपॉर्चुनिटीज है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में भी बताते हैं हम। फिर माईटैक्स के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं हम। और भी सारे जैसे निर्माण भवन फेलोशिप है उसके बारे में भी बताते हैं हम। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप के फेलोशिप्स होते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनको अच्छी तरह से सारा डिटेल्स में बताते हैं और उनको वेबसाइट्स के लिंक्स देते हैं और वो खुद जाके भी उसको गहराई से नज़र मार सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप्स के लिए। और विजिट इंडिया के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और हम डायरेक्टली भी वो अगर एलिजिबल होते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ये प्रोग्राम जो पार्टिसिपेट्स है इस प्रोग्राम से, उनको ही ज़्यादातर देते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़। जी, पर भारत सेंटर ऑफ कैनेडा की गल करिए तो इस बार प्रोग्राम कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग नाल आयोजित किया गया नो इंडिया प्रोग्राम, पर इस तो पहला भी इस तरह के कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए होंगे। तो हुण तक किन्ने स्टूडेंट्स नूं, किन्ने जिहड़े कहिए पार्टिसिपेंट्स नूं फायदा होया है इन्हां प्रोग्राम्स का, ते किन्नियां नूं फेलोशिप मिली है या अगे जाके इंडिया जिन्हां विच उन्हां दा इंटरस्ट सीगा उस दे विच होर एक्सप्लोर कर पाए ने, किन्ना को बेनिफिट होया है हुण तक स्टूडेंट्स नूं? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बहुत इंटरेस्ट लेके आगे आते हैं
और कई लोग जा भी चुके हैं काफ़ी। ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स को ही हम देते हैं, कई नॉन इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास है ईरान से है, पैलेस्टाइन से, काफ़ी सारे यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट है इंडिया के बारे में जानकारी लेने के लिए और इंडिया के साथ काम करने के लिए। फिर हमारे पास यूएस से स्टूडेंट्स हैं जो कि आते हैं और ऐसे कोर्स करने के बाद उनको जानकारी मिलने के बाद इंटरेस्ट और भी बढ़ता है। तो हम ये नहीं कि उनका जो ओरिजिन है इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, तो नॉन इंडियन ओरिजिन को भी देते हैं और इंडियन ओरिजिन के जो स्टूडेंट्स होते हैं और पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्होंने कि कभी इंडिया विजिट नहीं किया, तो उनको भी हम ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर उनका जो एक क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं जाके, और उसके बारे में आपको और भी गहराई से बाद में बता सकते हैं हम लोग। और उसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट अप करती है तो उसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया इन टोरंटो की वेबसाइट में जाइए और देखिए क्या क्या और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। भारत सेंटर ऑफ कनाडा के वेबसाइट में जाइए, ट्विटर और फेसबुक फॉलो कीजिए, और क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन ये सारे वेबसाइट और ट्विटर और फेसबुक में सर्कुलेट होती है, तो वो रेगुलर आप देखिए और उसके दौरान आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। और रेगुलर जो ये वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्किंग सेशंस भी होता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये सब में पार्टिसिपेट करके आपको जानकारी और भी ज़्यादा मिल सकता है। जी, आने वाले दिनों ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ भी ਅਜਿਹੇ प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे? जी, आगे हम लोग जैसे आपको बताया है कि भारत का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो चलेगा 1-2 साल। और ये जो प्रोग्राम हमने शुरुआत किया है ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसमें डिफरेंट और भी सब्जेक्ट्स हम लाएंगे, क्योंकि इस बार हमने कुछ सब्जेक्ट्स लाए थे ये सोच के कि ये पहला है और इसमें मतलब इंटरेस्ट और भी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास और भी रिक्वेस्ट आए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी चाहिए था। आर्कटिक के में क्या क्या कोऑपरेशन हो रहा है इंडिया के साथ, वो भी लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है। तो हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, तो हम रेगुलरली ये साल में 3-4 बार तो करेंगे ही, और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को रखेंगे, क्योंकि एक बार में 5 दिन में तो इतना वास्ट टॉपिक्स नहीं रख सकते। तो आगे जाके हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके करेंगे, और ये वर्कशॉप्स भी हम करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, और बाकी सेमिनार्स भी होता है। सो ये सब आप हमारे वेबसाइट और ट्विटर फेसबुक में ज़रूर देखिए, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारा सर्कुलेट होगा, और आप लोगों के पार्टिसिपेशन से ही ऐसी प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकती है। तो इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि आप आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनको बोलिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन का हो, क्योंकि कई सारे नॉन इंडियन ओरिजिन के लोगों को भी ये नॉलेज लेने में इंटरेस्ट रहता है, तो उनको भी आप इनकरेज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे जो मिलेनियल्स हैं, हमारे जो यंगर जनरेशन है, उनको एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दोनों देशों के साथ जो मित्रता है, दोनों देशों के साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको बढ़ाने के लिए जो यंगर जनरेशन की जो कांटेक्ट है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम से, ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम से ही ये सब कांटेक्ट्स बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाइए और इस टाइप के प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। जी, बिल्कुल सही किया तुसी। बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਮਸਤੇ। ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡਸ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Here, I learned a lot about India's technological development, about STEM, about culture, philosophy, history, and innovation. I also came to know about Canada-India's collaboration in different spheres. Overall, this program was very enriching and useful. I thank the organizers for conducting this program.
ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।